लिए जोरदार तालियां हैं। He's such a wonderful man. We thank God for what God is doing in his life. I also want you to put your hands together for Pastor Sarah John, another wonderful giver of God. Put your hands together for him. आइए वो चाहते हैं कि हम एक बार फिर मेरे लिए यानी पास्टर क्लास के लिए वो तालियां बजाना चाहते हैं। थैंक यू सर। And I also know there are other men of God there. I don't know them by name, but I want you to put your hands together for all the pastors that are also there, all the other pastors that are there. और मैं ये समझता हूँ कि आज यहाँ पर बहुत सारे खादमीन भी मौजूद हैं। मैं चाहता हूँ कि जितने खादमीन यहाँ पर आए हैं, हम सब उनके लिए भी तालियां बजाएंगे। And again, I want you to put your hands together one more time for all the organizers, everyone that puts effort and in for this program to be made. और जितने लोगों ने इस प्रोग्राम के लिए काम किया है, सारे जो इंतजामिया है, ऑर्गेनाइजर हैं, हम उनके लिए भी तालियां बजाएंगे ताकि उनकी हौसला अफजाई हो सके। And then finally, I want you to put your hands together for yourself. For coming to this program. Clap for yourself for coming to this program. और मैं चाहता हूँ कि हम सब अपने अपने तालियां बजाएं ताकि हम इस प्रोग्राम पर आए हैं और ये अपने आप की हौसला अफजाई करें। God is going to do amazing things. और आज याद रखिए कि खुदा बड़े काम करना चाहता है। All you got to do is just believe. God is going to do amazing things. आपने सिर्फ आज ईमान रखना है। जब आप ईमान रखेंगे तो यकीनन खुदा बड़े-बड़े काम करेगा। Whatever you have learned here today, believe in the Lord Jesus and you will never take back the same. और आज जिस ख्वाहिश से या जिस तकलीफ से या जिस दिली मुराद से आप यहाँ पर आए हैं, आज खुदा जरूर आपके लिए बहाली को जारी करेगा। Amen. आमीन। Let's bow down our head for a word of prayer. आइए दुआ के लिए चंद्र में अपने सर को झुकाएं। Father God, खुदा बाप, we thank you so much for today. आज के लिए हम तेरा शुक्र अदा करते हैं। This day was orchestrated before the foundation of this world. और खुदावंद तू चाहता है कि इस दुनिया में निजात का काम हो। I thank you for your son Jesus. हम तेरे बेटे यीशु के लिए तेरा शुक्र अदा करते हैं। And what you have got planned to do in our और खुदावंद जो तू हमारी जिंदगी में करना चाहता है, यीशु shout one more time, Jesus. एक बार फिर यीशु, Shout one more time, Jesus. आइए एक बार फिर यीशु, Shout one more time, Jesus. यीशु, Jesus. यीशु, Jesus. यीशु, And the last time, एक बार Jesus. फिर यीशु। God bless you. खुदावंद आपको बरकत दे। You know, Easter is a very special time for Christians and everybody in the world. और पूरी मसीहत के लिए, बल्कि पूरी दुनिया के लिए जो ईस्टर है, ये बड़ा अहम त्योहार है, ये बड़ा अहम वक्त है। And today is a very special day. और इस दिन की एक बड़ी खास अहमियत है। You know, when we talk about the story of
young gentleman and then the lady and the baby Jesus is a beautiful story. और जब हम यीशु की कहानी को पढ़ते हैं, सुनते हैं, तो हम देखते हैं कि यीशु की जो कहानी है, ये बड़ी खूबसूरत कहानी है। But that story is not complete without the cross. लेकिन And यीशु की जो कहानी है, ये सलीब के बगैर अधूरी है, सलीब के बगैर ये नामुकम्मल है। The story of Jesus is never completed until we talk about the cross of Calvary and then the empty tomb. और जो यीशु की कहानी में सलीब है, कलवरी का जो मकाम है, और यीशु का इसके बारे में जो रवैया है, ये भी बड़ा अहम है। And today, as you have come, I want to tell you that you have come to the Lord Jesus. और मैं आपको कहना चाहता हूँ कि जब आप इस इबादत के अंदर आए हैं, तो आप असल में खुदावंद यीशु के पास आए हैं। You have not come to a man, but you have come to God Himself. आज आप किसी इंसान के सामने नहीं, बल्कि खुदा के सामने आए हैं। And whatever your situation and whatever your problem, I came today to give you a miracle in Jesus' name. और आज मैं कहना चाहता हूँ कि आपके कैसे भी हालात क्यों ना हो, कैसी भी मुश्किल क्यों ना हो, आज यीशु के नाम से आज अपनी जिंदगी में मौजा को हासिल करेंगे। But I did not just come to give you a miracle, but I also to give you a miracle, so you can also give a miracle. मैं इसलिए आज यहाँ पर नहीं आया कि मैं आपकी जिंदगी में कोई मौजा लेकर आऊं, बल्कि मैं आपको खुद एक मौजा बना देना चाहता हूं, ताकि आप दूसरों के लिए मौजा का वसीला बन जाए। So as the message is coming, all I want you to do is open your heart and receive the message. और मैं चाहता हूं कि आज आप इस पैगाम के लिए अपने दिल को खोलें और इस पैगाम को रिसीव करें। And know that through the message, healing is going to happen. और आज इस पैगाम के वसीला से मौजात रोनुमा होंगे। You don't need to wait for me until I pray for the sick. But as the message comes, the word of God Himself will give you a healing. और आपको शिफाया दुआ के इंतजार की जरूरत नहीं है। जैसे खुदा आपसे कलाम करेगा, कलाम के दौरान ही आप मौजात पाएंगे। The word of God is going to give you a freedom. और खुदा की जो कुव्वत है, जो कलाम की कुव्वत है, वो आपको आजाद करती चली जाएगी। All you got to do is believe. आपने सिर्फ आज ईमान और यकीन रखना है। What I'm telling you today is not I'm guessing. I know because I've heard from the Lord. और आज जो कुछ मैं आपको कह रहा हूँ, ये कोई खामख्याली बात नहीं है, बल्कि ये खुदा की तरफ से कलाम है। Now you will not leave this assembly with your problem. Your problems are going to be solved. Just have to believe. जब आप खुदावंद के पास आ जाते हैं, तो आपकी जो मुश्किलात हैं, वो हल होना शुरू हो जाती हैं। आपको सिर्फ यकीन और ईमान रखना है। Even if you don't believe, I'll believe for you to get to the ground. Hallelujah. अगर आप आज यकीन के साथ नहीं आए, तो आइए अपने यकीन को कायम करें, पुख्ता करें। Amen. आमीन। So today, as we are thinking of talking about Easter, I'm just going to take every story, we sum up all Easter story. और आइए, जैसा कि हम ईस्टर के हवाले से यहाँ पर जमा हुए हैं, हम ईस्टर की कहानी में से चंद बातों को देखेंगे, उनके बारे में गौर करेंगे। I want somebody, Pastor Sellers, to read for me Mark chapter 14, verse 32 to 41. Mark chapter 14. मरकस की इंजील उसका 14वां बाब, उसकी 32वीं आयत से 41वीं आयत पढ़ेंगे। गौर से सुनिए, कलाम में लिखा है, फिर वो एक जगह आए जिसका नाम गतसमनी था, और उसने अपने शागिर्दों से कहा, यहाँ बैठे रहो जब तक मैं दुआ करूं। और पतरस और यकूब और यूहन्ना को अपने साथ लेकर नहायत हैरान और बेकरार होने लगा, और उनसे कहा, मेरी जान नहायत गमगीन है, यहाँ तक कि मरने की नौबत पहुँच गई है, तुम यहाँ ठहरो और जागते रहो। और वो थोड़ा आगे बढ़ा और जमीन पर गिरकर दुआ करने लगा, और अगर हो सके तो ये घड़ी मुझ पर से टाल जाए,
और कहा, ए अब्बा, ए बाप, तुझसे सब कुछ हो सकता है, इस प्याला को मेरे पास से हटा ले, तो भी जो मैं चाहता हूँ वो नहीं बल्कि जो तू चाहता है वही हो। फिर वो आया और उन्हें सोते पाकर पतरस से कहा, ऐ शमौन, तू सोता है, क्या तू एक घड़ी भी न जाग सका? जागो और दुआ करो ताकि आजमाइश में न पड़ो। रूह तो मुस्तैद है मगर जिस्म कमजोर है। वो फिर चला गया और वही बात कहकर दुआ की और फिर आकर उन्हें सोते पाया, क्योंकि उनकी आंखें नींद से भरी थी। वो न जानते थे कि उसे क्या जवाब दें। फिर तीसरी बार आकर उनसे कहा, अब सोते रहो और आराम करो, बस वक्त आ पहुंचा है। देखो, इब्ने आदम गुनहगारों के हाथ में हवाला किया जाता है। आमीन। Amen. So as we read in Mark chapter 14 verse 34, और जब हमने मरकस की अंजील का ये हवाला पढ़ा 14वां बाब, Jesus said, my soul is exceedingly sorrowful. और खास तौर पर जो 34वीं आयत हमने पढ़ी है, उसने कहा कि मेरी जान नहायत गमगीन है। My soul is exceedingly sorrowful unto death. और उसने कहा कि मेरी जान नहायत गमगीन है, यहाँ तक कि मरने की नौबत पहुंच गई है। So tarry here and watch. और वो वहां पर फिर भी ठहरा रहा और जागता रहा। That was Jesus talking to his disciples. और उसके बाद हम देखते हैं कि उसने अपने शागिर्दों से बात की। We are talking about Jesus' agony prayer in the Garden of Gethsemane. और हम बागे गतशमनी में खुदावंद यीशु मसीह की उस दुआ के बारे में बात कर रहे हैं जो उसने बड़ी जान कनी और गमगीनी की हालत में वहां पर अदा की। When Jesus and his disciples got to Gethsemane, और जब यीशु और उसके शागिर्द उस गतशमनी बाग के अंदर आए, he told his disciples to wait, and that he went ahead with Peter, James, and John. और उसने अपने शागिर्दों से कहा कि वो वहां पर ठहरे, और वह पतरस, याकूब और यूहन्ना को अपने साथ लेकर वहां गया। And he said, my soul is exceedingly sorrowful. और उसने कहा कि मेरी जान जो है वो गमगीन है और बेकरार हो रही है। He said, I am sorrowful to death. कि आज मैं नहायत गमगीनी और जान कनी की हालत में हूँ। So sit here and watch. तो उसने शागिर्दों से कहा कि यहाँ बैठो और जागते रहो। Jesus said, my life is great. और यीशु की जिंदगी उस वक्त बड़ी गमगीनी की हालत में थी। My mind is intensely sad. और उसने कहा कि मेरा जो दिल है और दिमाग है वो आज परेशान है, मायूस है। I am feeling so heavy and grieved. और मैं आज बड़ा अपने आप पर बोझ महसूस कर रहा हूँ। Then he moved on in Mark chapter 14, the verse 35. और उसके बाद वो आगे बढ़ा और उसने दुआ की। Bible says, and he went forward a little and fell on the ground and prayed. और लिखा है कि वो थोड़ा आगे बढ़ा और जमीन पर गिरकर दुआ करने लगा। He said, if it were possible, the hour had passed from him. तो उसने कहा कि हो सके तो ये घड़ी मुझसे टाल जाए। And he said, और उसने कहा, Abba, Father, कि ए अब्बा, ए बाप, all things are possible unto me. तुझसे सब कुछ हो सकता है। Take away this cup from me. Nevertheless, not what I will, but your will. इस प्याला को मेरे पास से हटा ले, तो भी जो मैं चाहता हूँ वो नहीं बल्कि जो तू चाहता है वही हो। When Jesus was filled with sorrow, और जब यीशु उस वक्त गमगीनी की हालत में था, when Jesus had been filled with grief, जब यीशु दुख से भर चुका था and his physical body was feeling tormented, और उसको उस पर तशद्दुद किया जाने वाला था और वो घड़ी उसके लिए मुश्किल बनती जा रही थी, because he was about to drink the cup. तो वो
के सामने आया, उसने कहा कि हो सके तो ये प्याला मुझसे टल जाए। But when he saw what and how and what the cup is, लेकिन वो जानता था कि उसको किस रास्ते पर चलना है, वो अपने रास्ते को जानता था। he prayed and said, Abba, Father, तो can you take this cup away from me? उसने बाप से दुआ की, उसने कहा कि अब आप मुझसे, तुझसे सब कुछ हो सकता है। When he saw what comes with the cup, he said, Father, everything is possible. Can you take this cup away from me? उसने गमगीनी की हालत में खुदा से कहा कि तुझसे सब कुछ हो सकता है, अगर ये तेरी मर्जी है, अगर हो सकता है तो ये प्याला मुझसे हटा ले। What cup was Jesus telling the Father to take away? ये कौन सा प्याला है जो यीशु चाहता था कि मुझसे हटा लिया जाए? This cup is filled with the sins of me and you. ये वो प्याला था जिसके अंदर मेरे और आपके गुनाह जो थे वो भरे हुए थे, All our past sins, और सारी दुनिया की लानतें भी उसके अंदर भरी हुई थी, all our present sins, और हमारी सारी कमजोरियां और जो थी वो उसके अंदर थी, and all our future sins. और बेइंसाफी जो थी वो भी उसके अंदर भरी हुई थी। The filthiness of all the sins of the world was put in the cup of Jesus to drink. और ये हमारी सारी बदकारियां जो थी वो उस प्याले के अंदर डाल दी गई थी जो यीशु पीने वाला था। The adultery that we commit, और सारी दुनिया की जो लानतें थी वो भी उसके अंदर थी। our temptations that we commit, लेकिन यीशु जो था वो इन सारी चीजों को हमसे दूर कर देने वाला था। our murder that we commit against one another, Sorry, can you repeat? our hatred that we commit against one another, hatred, और हमारी जो नफरत है जो हम एक दूसरे से करते हैं वो भी उसके अंदर थी। our drunkenness and our lies, और हम जो एक दूसरे से झूठ बोलते हैं वो भी उस प्याला के अंदर थे। our envy, our gossip and jealousy, और हमारी हसद और हमारा बुग़्ज़ जो है वो भी उस प्याला के अंदर थी। and all the things that we can mention. और वो सारी चीजें जो अच्छी नहीं है, जिनके बारे में हम तसव्वुर कर सकते हैं, वो सारी चीजें उसके अंदर थी। Every wrongdoing that we were doing was put in the cup for Jesus to drink. और हर एक वो बुरी बात जो हम दूसरों से करते हैं, बुरे काम जो करते हैं, वो उस यीशु के प्याला के अंदर डाल दी गई थी। So when Jesus saw the sins of you and I, और जब यीशु ने मेरे और आपके गुनाहों को देखा, and how filthy the sins are, तो उसने देखा कि ये गुनाह जो है ये कितने गंदे और कितने आलूदा हैं। he said, Father, can this cup be moved away तो from me? फिर उसने कहा कि अब आप हो सके तो ये प्याला मुझसे हटा लिया जाए। But not just the sins. लेकिन ये सिर्फ हमारे गुनाह नहीं थे, But he also saw the wrath of God against our sins. लेकिन उसने खुदा के उस गज़ब को भी देखा जो हमारे गुनाहों के खिलाफ खुदा रखता है। Every sin we commit has the wrath of God attached to it. और जो भी गुनाह हम करते हैं उसके साथ खुदा का गज़ब जो है वो शामिल हो जाता है। You see, God is a loving God. और लेकिन हम देखते हैं कि खुदा जो है वो मोहब्बत करने वाला खुदा है। But God is also a just God. और खुदा जो है वो ऐसा खुदा है जो फजल को भी जारी करता है। And the justness of God make him to punish sin. और ये भी हम देखते हैं कि खुदा जो है वो इंसाफ का खुदा है, और इंसाफ ये कहता है कि जो गुनहगार है वो जरूर हलाक कर दिया जाए। When we sin, God cannot overlook sin but have to punish us for sin. और जब हम गुनाह करते हैं तो खुदा का गज़ब जरूर हम पर नाज़िल होता है। खुदा जरूर उस गुनाह को देखता है। Because he is a righteous judge. और
उस प्याला के अंदर खुदा का गज़ब भी शामिल था। Imagine somebody who is a just person, a judge in your city. आप तसव्वुर करें किसी ऐसे शख्स को जो यीशु की जगह पर हो, And two people, one person did wrong thing to the other person. और आप तसव्वुर करें कि दो शख्स हैं और उनमें से एक शख्स है वो दूसरे को मारता है या हलाक करता है, And they bring these people to the judge. और वो दोनों जो है वो अदालत में पेश किए जाते हैं। And then the judge says that all of you go. Sorry. And the judge brings these two people before the judge. One that has robbed the other one, or left the one has killed the other one's child. And you bring these two people before the judge, and the judge say, "I release both of you go." और जो आप तसव्वुर करें कि जो जज है, जो इंसाफ करने वाला है, वो उस शख्स को सजा देता है। You would definitely say that a judge is not just. और यहाँ आप तसव्वुर करें कि जज जो है इंसाफ करने वाला वो ये इंसाफ करता है कि उस शख्स को बरी कर दिया जाए, तो हम कहेंगे कि ये कैसा इंसाफ है। The judge is not just because he did not give justice to the one whose child was killed. तो हम कहेंगे कि ये जज जो है ये दुरुस्त नहीं है, इसने सही इंसाफ नहीं किया है। You only call the judge just if only he brought justice to the one who was harmed and punish the one who did the wrong thing. लेकिन आप उसके बारे में सोचें जिसने गुनाह किया है, उसको माफ कर दिया गया है, उसके नजदीक उस जज ने बड़ा बेहतरीन फैसला किया है। That is who God is. So God is a just God. He cannot just let sin go unpunished. और खुदा जो है वो भी इंसाफ करने वाला खुदा है, और वो हमारा इंसाफ करता है। वो नहीं चाहता कि गुनाह के बदले में वो हमें सजा दे। Bible says in Romans 3:27, we have all sinned and fall short of the glory of God. और रोमियो के खत में लिखा है कि हम सब ने गुनाह किया और खुदा के जलाल से महरूम हुए। So every one of us here today, we have all sinned. और आज भी हम जो है हम खुदा के जलाल से गुनाह करके महरूम हो जाते हैं। The Bible says the wages of our sin is death. और बाइबल मुकद्दस बयान करती है कि हमारे जो गुनाह है उसकी मजदूरी मौत है। Every sin that you and I have committed, you are supposed to face eternal death. और जितने गुनाह मैंने और आपने किए हैं, इनके नतीजे में जो सजा है वो यही है कि हम अबदी हलाक कर दिए जाएं या अबदी हलाकत में चले जाएं। And this death is eternal separation from God forever. और गुनाह के नतीजे में जरूर है कि हम हमेशा के लिए खुदा से दूर कर दिए जाएं। So the wrath of God in the cup that Jesus was about to drink. और खुदा का गजब जो था असल में यीशु मसीह उसको दूर करने वाला था। Once Jesus looked at it and he said, "Father, can this cup pass me by?" और इसलिए जब यीशु ने उन गुनाहों को देखा तो यीशु ने कहा, उसके अंदर खुदा का गजब भी था। यीशु ने कहा कि हो सके तो ये प्याला जो है वो मुझसे टल जाए। We see in the Bible so many times that God always punishes sin. और क्योंकि हम देखते हैं कि खुदा हमेशा से ही गुनहगारों को सजा देता आया था। Think about Noah's time. Bible says the whole earth sinned. और जितने पुराने लोग थे, पहले लोग थे, सब ने ही तो गुनाह किया था। And because God punishes sin, क्योंकि खुदा जो है वो गुनाह की सजा देता है, He rained 40 days and 40 nights and He wiped away everybody on earth. और हम देखते हैं कि उसने तूफान भेजा और जो 40 दिन 40 रात पानी चढ़ता रहा और उसने सारे गुनहगारों को मार डाला।
The only person that was saved was Noah and his family, 8 people. और सिर्फ जमीन पर नूह और उसका खानदान ही बचे जिन्होंने जिंदगी पाई। We also know from the Bible that when Sodom and Gomorrah, और हम सदूम और अमूरा के बारे में भी बाइबल मुकद्दस में से जानते हैं, when they sinned so much of homosexuality and sexual perversion, और हम देखते हैं कि वहां पर बहुत ज्यादा बदकारी थी और जिनसी बेरारवी थी। we saw God rain down fire from heaven to destroy the और city. हम देखते हैं कि खुदा का गजब आसमान से नाज़िल हुआ और सदूम और अमूरा पर आग बरसाई गई। Countless times we see the Israelites who were the chosen people of God, और हम देखते हैं कि इस्राएली जो खुदा के चुनी हुई कौम थी, when they sinned against God, जब वो भी खुदा के खिलाफ गुनाह करते, God will punish them and cause other nations to come and punish them. और खुदा उनको भी सजा देता। So God is a just God and He will always punish sin. और खुदा जो है वो रास्त खुदा है, रास्ती का खुदा है और वो हमेशा ही गुनाह की सजा देता है। So you and I, we have sinned and now we deserve the punishment of God. और हम सब ने गुनाह किया है और हम सब ही खुदा की सजा के हकदार थे। But God so much with love. लेकिन दूसरी तरफ खुदा जो है वो हमसे मोहब्बत भी करता है And His love always precedes His wrath. और उसकी जो मोहब्बत है वो हमेशा ही उसके गजब पर गालिब आ जाता है। So God decided to look for a way to put the punishment of our sin on somebody. तो खुदा जो था वो ऐसा रास्ता देख रहा था कि वो कैसे हमारे गुनाहों को किसी दूसरे के ऊपर लाद दे या हमें हमारे गुनाहों से छुटकारा दे। So that instead of you and I taking the punishment of God, और जब मैं और आप खुदा की सजा के हकदार थे, God can put all the punishment on somebody. लेकिन खुदा ने हम सब के गुनाह जो थे वो लिए और किसी दूसरे के ऊपर लाद दिए। God looked through all the earth to look for somebody who can bear the punishment of all sins. खुदा ऐसे शख्स की तलाश कर रहा था जिसके ऊपर वो हमारे सारे गुनाहों को लाद सके। But He did not find anyone on it. लेकिन जमीन पर ऐसा कोई शख्स मौजूद नहीं था। So the only thing God can do is to send His only Son Jesus Christ. तो अब खुदा के पास एक ही रास्ता था कि वो अपना इकलौता बेटा यीशु दे और उसके ऊपर हमारे गुनाह को लाद दे। To come and be born as a little child and grow and take all the sins of men. जो जमीन पर आए और हमारे सारे गुनाहों को अपने ऊपर ले और उन सारे गुनाहों को वो कहीं दूर फेंक दे। Jesus is the only one who walked on earth and never sinned. और यीशु ही वो वाहिद हस्ती था जिसने खुद कभी गुनाह नहीं किया था। Every man other than Jesus who walked on earth sinned like you and I. और जिस तरह हम गुनाह करते हैं यीशु ने ऐसे कभी गुनाह नहीं किया था। It's only Jesus who walked on earth for 32.5 years and did not sin. और यीशु ही वो वाहिद हस्ती थी जिसने ना सिर्फ आसमान पर बल्कि जमीन पर भी आकर कोई गुनाह नहीं किया था, वो हमेशा बेगुनाह रहा था। And because He walked on earth and He did not sin, He was qualified to be able to carry the sins of you and I. और ना ही सिर्फ वो बेगुनाह था बल्कि वो मुकम्मल तौर पर पाक था, लेकिन फिर भी उसने मेरे और आपके गुनाहों को अपने ऊपर ले लिया। So in the garden, as He was praying, He was about to take the cup of our sins and the wrath of God against our sins. और इसलिए जब गतशमनी में वो दुआ कर रहा था तो वो उस प्याला को देख रहा था जिसके अंदर हमारे गुनाह थे और खुदा का गजब भी उसके अंदर शामिल था। But when He saw the guiltiness and how the wrath of God against sin is, और वो देख रहा था कि ये तमाम दुनिया के गुनाह कैसे हैं और खुदा का गजब इनके खिलाफ भड़का है।
His physical body was so grieved and in anguish. इसलिए उसकी जो जान थी वो उस वक्त बड़ी बेकरार और गमगीन हुई जाती थी। So he prayed, Father, तो उसने कहा, ऐ बाप, if it is possible, let this cup pass me. अगर था कि उसका जो पसीना था वो खून बनकर टपक रहा था, Because he was filled with grief of our sins. क्योंकि वो हमारे गुनाहों के दुख से भरा हुआ था। And he knows that sin needs to be punished. और वो जानता था कि गुनाह को और गुनहगार को आज सजा दी जाने वाली है। And he knows he's about to go through pain and torture for you and I. और वो ये भी जानता था कि वो हम सब के लिए खुद गुनहगार बन गया था। Bible says he was so much in anguish that an angel had to be sent from heaven to strengthen him. और कलाम में लिखा है कि वो आसमान की तरफ देखकर दुआ कर रहा था। So he prayed 3 times, Father, take this cup away from me. और उसने 3 दफा एक ही दुआ की। उसने कहा कि हो सके तो ये प्याला मुझसे टल जाए। But he said, Father, not as I will, but your will. लेकिन उसने फिर भी ये कहा कि बाप मेरी नहीं बल्कि तेरी मर्जी पूरी हो। Now, when we look through the Bible, anytime Jesus prayed, God answers. और हम देखते हैं कि जब यीशु मसीह दुआ कर रहा था उस रात, Jesus never prayed more than once and God will never answer. और कभी ऐसा नहीं हुआ कि यीशु ने दुआ की हो और उसको जवाब ना मिला हो। Now, why this time 3 times and the Father did not answer him? लेकिन यहाँ पर उसने 3 बार दुआ की है लेकिन उसको जवाब नहीं मिल रहा। Because the Father loved you and I so much. और आखिरकार जब उसने बाप ने उसको जवाब दिया तो ये खुदा की मोहब्बत को जाहिर करता है कि खुदा जो है, बाप जो है, वो हमसे प्यार करता है। And because of the love the Father God has for you and I, और खुदा मुझसे और आपसे इतनी ज्यादा मोहब्बत करता है, He wants His will to be done, not Jesus' desire at that of the Son. और उसकी वो चाहता था कि उसकी मर्जी पूरी हो और उसकी मर्जी ये थी कि यीशु हमारे गुनाहों की खातिर मर जाए। What is the will of God? और खुदा अपनी मर्जी पूरी करना चाहता था। Jesus said, Father, not my will, but your will. और What is the will of God? यीशु ने दुआ भी यही की थी कि खुदा मेरी नहीं बल्कि तेरी मर्जी पूरी हो। और खुदा की मर्जी क्या थी? In 1 Timothy chapter 2, verse 3 and 4. Can you repeat again? 1 Timothy chapter 2, verse 3 and 4. पहला तीमुथियुस उसका 2 बाब उसकी 3री और 4थी आयत हम देखेंगे। Bible says that God's will is that every man will come to the saving knowledge of Jesus Christ. यहाँ लिखा है कि वो चाहता है कि सब आदमी निजात पाए और सच्चाई की पहचान तक पहुंचे। The will of God is that you and I and everyone in this world will be saved. और खुदा की मर्जी ये है कि मैं और आप बल्कि पूरी दुनिया जो है, हर एक बशर जो है वो निजात हासिल करे, वो बचाया जाए। The will of God is that you and I can come to Him as the Father. और उसकी मर्जी ये है कि हम सब जो है वो निजात पाकर खुदा के सामने पेश कर दिए जाए। So because of His will, और ये जब उसकी मर्जी है, He did not answer Jesus' prayer in the Garden of Gethsemane. और उसने इसी के ऊपर खुदा यीशु की दुआ का जवाब दिया। Because if God would have answered Jesus' prayer, और वो हमेशा से ही यीशु की दुआ का जवाब देता था, you and I will forever be condemned and we can never go to God. और यहाँ पर उसने हमेशा के लिए हमें बचा लिया और अपने साथ उसने मेल मिलाप कराया। So because the love God has for you and I, और इसलिए हम सबको ये शर्फ हासिल हुआ कि हम खुदा के साथ सामने पहुंचाए जाएं। it is that
He decided to prove Jesus. He decided to let Jesus go through the pain to save you and I. और हमें बचाने के लिए खुदा की मर्जी यह थी कि यीशु दुख उठाए, वो इन दुखों से निकले और अपनी जान दे। Bible tells us that God proves Jesus. It pleases him to crush Jesus for you and I. और बाइबल मुकद्दस बयान करती है कि खुदा चाहता था कि यीशु उस घड़ी तक पहुंचे और यीशु जो है वो दुख उठाए। So Jesus was bruised. Jesus was crushed because of you and I. और यीशु जो है उसने अपने आप को साबित किया और यीशु जो है हमारे गुनाहों के लिए सूली पर चढ़ गया। The reason the Father did not take the cup away from Jesus. और हमारे जो गुनाह थे वो यीशु पर लादे गए, उस पर डाले गए। And wanted Jesus to drink the cup. और यीशु ने शरीर पर क्या किया? Because there was no other way that God could bring man to himself apart from Jesus dying on the cross. और खुदा जो था वो ये चाहता था कि वो प्याला यीशु से हटाए ना, बल्कि वो चाहता था कि यीशु वो प्याला पिए और शरीर पर मर जाए। My dear beloved, there is no other way. There was the way God would have changed it. क्योंकि और कोई रास्ता नहीं था कि हम सब लोग बचाए जाएं, यही रास्ता था कि यीशु वो प्याला पिए। Jesus said, Father, everything is possible for you. लेकिन यीशु ने कहा कि खुदा तुझसे तो सब कुछ हो सकता है। Everything is possible to God. हर कुछ खुदा से मुमकिन है, हर चीज मुमकिन है। But there was only one way to salvation. लेकिन निजात के लिए सिर्फ एक ही रास्ता है, And that is through Jesus Christ. और वो यीशु मसीह है। Because he is the one who drank the cup of God's wrath and our sin for us. क्योंकि उसी ने उस गजब के प्याला को मेरे और आपके लिए पिया है। Jesus is the only way. और सिर्फ यीशु ही वो रास्ता है। If there were other ways, God would have taken the cup from Jesus. और अगर कोई और दूसरा रास्ता होता तो खुदा जरूर वो प्याला उससे हटा लेता। If there was other way to God, God would have done it when Jesus prayed 3 times for the cup to be taken away. और अगर कोई दूसरा रास्ता होता तो जब यीशु दुआ कर रहा था तो खुदा जरूर उससे वो प्याला हटा लेता और दूसरे रास्ते का इंतखाब करता। Now because there was no other way and the only way is through Jesus, Jesus drank the cup. और इसलिए और कोई रास्ता नहीं है, सिर्फ यीशु ही वो रास्ता है जिसके वसीला हम निजात पा सकते हैं। Bible says in Acts chapter 4 verse 12. और बाइबल मुकद्दस बयान करती है, It says, neither is there salvation in any other. कि यीशु के नाम में ही निजात है, For there is none other name under heaven. और जमीन पर और आसमान पर और दूसरा कोई नाम नहीं बख्शा गया Given among men where we can be saved. कि जिसके वसीला से हम निजात पाएं। There is no other way. There is no other name given for us to be saved. और ना ही कोई और दूसरा रास्ता है और ना ही कोई और दूसरा नाम बख्शा गया है। Because Jesus is the only one who drank the cup for you and I. क्योंकि यीशु ही वो हस्ती है, यीशु ही वो शख्सियत है जिसने मेरे और आपके लिए वो प्याला पिया है। That is why Jesus said in John chapter 14 verse 6. और इसलिए यीशु ने उस दिन अब हमारे लिए उस प्याला को पिया और वो राह कलवरी पर चला। He said, I am the way. और इसलिए वो कहता है कि मैं वो रास्ता हूँ, I am the truth. और मैं हक हूँ, And I am the life. और मैं ही जिंदगी हूँ, यानी राह, हक और जिंदगी मैं हूँ। No one goes to the Father except through me. कोई मेरे वसीला के बगैर बाप के सामने या उसके पास नहीं आ सकता। Jesus Christ is the only way to God. यीशु ही सिर्फ वह रास्ता है जो हमें खुदा तक ले जाता है। Jesus Christ is the only truth. और यीशु ही सिर्फ वो हक और सच्चाई है। And Jesus
Jesus Christ is the only one who can give you life eternal. और सिर्फ यीशु ही है जो हमें नई जिंदगी दे सकता है। And because God wants to save you and I, और जब खुदा हम सबको बचाना चाहता है, Jesus drank the cup. और इसलिए उसने वो प्याला यीशु को दे दिया। God did not take the cup from Jesus. और खुदा ने वो प्याला यीशु से वापस नहीं लिया, Because the will of God is that you and I can be saved. क्योंकि खुदा की मर्जी ये थी कि मैं और आप बचाए जाएं। And because there was no other way for one to be saved. और उसके अलावा और कोई रास्ता नहीं था कि हम नजात पा सकें। So Jesus drank the cup of और God's इसलिए wrath and our sin. यीशु ने वो प्याला लिया और मेरे और आपके लिए वो सलीब पर चढ़ गया। So Bible tells us that after Gethsemane and after now, he decided to drink the cup. और इसलिए फिर यीशु ने यह फैसला किया कि वो उस प्याले को ले और पिए। Jesus was arrested. और यीशु जो था वो हमारा दरमियानी बन गया। And Jesus was tortured for you and I. और यीशु हमारे लिए उसको मारा कूटा गया, उस पर तशद्दुद किया गया। Bible tells us that there is spot on his face. और बाइबल मुकद्दस में लिखा है कि उसको कोड़े लगाए गए, उसको मारा गया। They blindfolded him and shot him in his head. और लिखा है कि उसको मारा गया, कूटा गया, उस पर तशद्दुद किया गया। They laughed at Jesus. सॉरी, They laughed at Jesus. They mocked Jesus. और उन्होंने यीशु का मजाक उड़ाया, यीशु की हंसी उड़ाई। All this that you and I were supposed to pay, Jesus paid that for us. असल में ये सब कुछ हमारे साथ होना चाहिए था, लेकिन यीशु ने हमारे लिए कीमत अदा की। Jesus, Bible tells us that he was beaten at the back. और यीशु ने हमारे गुनाहों को अपनी पीठ पीछे फेंक दिया, उसके ऊपर ले लिया। Jewish tradition tells us that they whipped you 39 lashes. और असल में ये हमारे गुनाह थे, हमारा बोझ था जो यीशु ने अपने ऊपर उठा लिया। Jesus took 39 lashes on his back. और यीशु ने 39 कोड़े खाए। Now, medical science tells us that every sickness and disease in this world और कहा जाता है कि इस दुनिया में जितनी बीमारियां हैं can be put in 39 categories. उनको 39 कैटेगरीज में बांटा जा सकता है कि इस जमीन के ऊपर जितनी बीमारियां हैं वो उनके जो हेड हैं वो 39 हैं। So every sickness you have, तो इसका मतलब यह है कि हमारी जितनी बीमारियां हैं that anybody could ever have, या जिस किसी को भी कोई बीमारी रही थी, can be categorized into 39 different तो categories. यीशु ने 39 कोड़े खाए, यानी हर एक बीमारी के लिए यीशु ने एक कोड़ा खाया। And Jesus received 39 lashes on his back. और यीशु ने 39 कोड़े ही खाए हैं, जितनी बीमारियां हैं उतने कोड़े उसने खाए हैं। And Bible tells us that every stroke he received on his back, और बाइबल मुकद्दस में लिखा है कि जितने कोड़े उसने अपनी कमर के ऊपर खाए was for our healing. वो हमारी शिफा के लिए थे। History tells us that the whip that they used to whip Jesus और हम देखते हैं कि जब उसको मारा गया, is a rope that has torn the bones and metal at the edge. और हर एक कोड़े के साथ उसका गोश्त भी उसके साथ बाहर आता रहा, उसकी हड्डियां जो है उस पर उस कोड़े का असर होता रहा। So when they whip you, और जब वो उसको मार रहे थे, then the bones and the metals and the thorns in it will touch your skin and rip your skin off. तो कोड़ा जब लगता है तो उसके साथ हमारा जिस्म, हमारा गोश्त भी उसके साथ ही निकल आता है। So every whip that they give to Jesus, तो हर कोड़ा जो यीशु पर लगाया गया, torn his flesh apart. वो
उसके जिस्म को तोड़ता गया। The Bible says that by his stripes we are healed. और बाइबल मुकद्दस में लिखा है कि उसके मार खाने से हमने शिफा पाई है। Jesus was beaten so you and I can be healed from our यीशु sickness. ने इसलिए मार खाई ताकि मैं और आप शिफा पा सके। Jesus Christ was beaten so today every sickness and disease to come to you are going to be healed because of his stripes. और यीशु ने हमारी हर एक बीमारी कमजोरी के लिए कोड़े खाए मार खाई ताकि हम शिफा पा सकें। Jesus cried and when they beat him. और यीशु ने हम सब के लिए ये सारी मार खाई दर्द सहा। And after all the beatings and the tortures and everything, और जितनी बीमारियां हैं कमजोरियां हैं सब के लिए उसने मार खाई और उनको उठा लिया। they took Jesus to Calvary. और सारी मार सहकर यीशु कलवरी की राह पर चल पड़ा। And they crucified him on the cross. और हम देखते हैं कि उन्होंने फिर यीशु को सलीब पर मसलूब कर दिया। And on the cross Jesus was stripped naked. He was naked. और सलीब पर भी हम देखते हैं कि यीशु का मजाक उड़ाया गया। The Son of God who was full of glory was naked because of you and I. और हम देखते हैं कि सलीब पर खुदा का बेटा हमारे लिए उसके कपड़े उतार दिए गए, जो जलाल से भरा था उसके ऊपर से कपड़े उतार दिए गए। Jesus was made naked so you and I can be covered. और उसको इसलिए उसके कपड़े उतार दिए गए ताकि हम छुपा लिए जाएं, हम बचा लिए जाएं। On the cross, Bible says he was thirsty. और उसने सलीब पर कहा कि मैं प्यासा हूं। The God who created everything and water could not get water to drink. और खुदा जिसने हर एक चीज को पैदा किया बनाया, जिसको वो हर चीज हर एक शख्स को जो मुहैया करने वाला है, Jesus was thirsty because of you and I, our sins and our punishment. आज उस दिन हमारे बनाने वाला हम सब के लिए सलीब पर चढ़ा हुआ था। Jesus, the one who created the whole world, his hand was taken from him. और जिसने सारी कायनात को तख्लीक किया वो उस दिन सलीब पर था। They nailed his hands to the cross. और उसने अपने हाथ जो थे वो सलीब पर फैला रखे थे। And they nailed his feet to the cross. और हम देखते हैं कि उसके हाथों पर कील जड़े गए। And Jesus was hanging on the cross, bleeding all over. और यीशु उसका खून जारी था, बह रहा था और वो सलीब पर लटका हुआ था। When they offered Jesus wine mixed with blood. Sorry. When they offered Jesus wine and blood. और हम देखते हैं कि हम सोचे कि क्यों यीशु ने ये सब कुछ किया। Jesus refused to drink it because he wanted to feel every pain and the pains we and I will go through. क्योंकि यीशु चाहता था कि हमारी सारी तकलीफें दूर कर दी जाएं, जिस दर्द से हम गुजरते हैं हम उससे छुड़ाए जाएं। On the cross because of our sins. और हमारे गुनाहों के वसीला से वो सलीब पर चढ़ा। The Father God could not look at Jesus. और खुदा बाप जो था वो यीशु पर नजर ना कर पाया। Because Jesus was carrying all our sins. क्योंकि हम सब के गुनाह यीशु के ऊपर थे। So Jesus cried out in a loud voice. तो यीशु बड़े जोर से चिल्ला रहा था, My God, why have you forsaken me? ऐ बाप तूने मुझे क्यों छोड़ दिया? My God, why have you forsaken me? ऐ बाप तूने मुझे क्यों छोड़ दिया? Jesus Christ was forsaken so that you and I can be received. खुदा ने यीशु को इसलिए भुला दिया, छोड़ दिया ताकि वो हमें अपने पास बुलाए। God
forsook Jesus because of our sin. और यीशु को इसलिए उसने छोड़ दिया क्योंकि वो हमारे गुनाहों को साफ कर देना चाहता था। That you and I can come to God because He was forsaken. ताकि मैं और आप गुनाहों की माफी हासिल करके उसके सामने आ सकें। So when everything ended, Jesus shouted, "It is finished." और उसके बाद जब ये सब कुछ हो गया तो यीशु ने कहा कि तमाम हुआ। Jesus finished everything on the cross for you. यीशु ने शरीर पर हमारे लिए सब कुछ खत्म कर दिया। All the punishment of your sin was finished on the cross. और हमारी जितनी गलतियां थी, खताएं थी, गुनाह की सजा थी, यीशु ने शरीर पर उनका खात्मा कर दिया। Jesus paid for all your sins, present, past, and future on the cross for you. और यीशु ने हमारे तमाम गुनाहों को लिया और शरीर पर जड़ दिया और उनका खात्मा कर दिया। Jesus paid for all your sins. और यीशु ने हमारे तमाम गुनाहों की कीमत अदा कर दी। Jesus is the only one who paid for everything wrong thing that you and I would have done. और यीशु ही वो हस्ती है जिसने हमारे तमाम बदकारियों की कीमत अदा की है। So Bible says in 2 Corinthians chapter 5 verse 19. और दूसरा करंथियों उसका 5वां बाब, 2 Corinthians chapter 5 verse 19. और उसकी 19वीं आयत में लिखा है 5:19. यस, मतलब ये है, It says that and with that यस, मतलब ये है, God was in Christ. मतलब ये है कि खुदा ने मसीह में होकर the world unto Himself. मतलब ये है Not कि imputing their sins against them. मतलब ये है कि खुदा ने मसीह में होकर अपने साथ दुनिया का मेल मिलाप कर लिया और उनकी तकसीरों को उनके जिम्मा ना लगाया। God is not counting your sin and my sins against us. और खुदा ने हमारी तमाम तकसीरों को हमारे जिम्मा ना लगाया Because He put all our sins on Jesus Christ. क्योंकि उसने हमारे गुनाहों को यीशु के ऊपर लाद दिया। So Jesus has paid for all our sins. तो इसलिए यीशु ने हमारे तमाम गुनाहों की कीमत अदा की। So the story tells us that Jesus was buried. और इसलिए यीशु जो है वो मसलूब किया गया। After His death on the cross, He was taken down and was buried in a tomb. और सलीब पर यीशु ने उन तमाम कामों को पूरा किया जिसके लिए वो जमीन पर आया था। Jesus was buried as anyone that died. When somebody died, we bury them. और सलीब पर यीशु ने हमारे तमाम गुनाहों को लिया और हमारे तमाम बोझ को उसने हल्का कर दिया। So Jesus Christ was also buried because he died. He was dead. और इसलिए यीशु ही हमारे तमाम गुनाहों के लिए हुआ और उसने हमारे वास्ते जान दी। Jesus was buried on Friday. और यीशु को जुमे वाले रोज दफना दिया गया। He was in the grave or in the tomb on Saturday. और वो जुमे वाले दिन उसको कब्र के अंदर उतार दिया गया। And on the third day, which is a Sunday, और लेकिन तीसरे दिन यीशु बड़ी कुदरत से जी उठा। Jesus rose from the dead again. And और in वो our life. मुर्दों में से दोबारा जी उठा और दोबारा उसके अंदर जिंदगी आई। Jesus rose again from the grave. और हम देखते हैं कि यीशु दोबारा कब्र में से जिंदा हुआ। He did not remain in the grave. और वो कब्र में पड़ा ही ना रहा। He is the only one who died and resurrected again. और वो ही वो हस्ती है जो हमारे लिए हुआ और दोबारा जिंदा किया गया। Jesus gave His life for you and I. He was taking
for me, He gave it to Himself. और यीशु ने मेरे और आपके लिए अपनी जान दी और उसी ने हमारे लिए कब्र में जाना पसंद किया। Because of the love of the Father, Jesus gave His life for you and I. क्योंकि उसने खुदा की उस मोहब्बत को हमारे लिए जारी किया जो वो हमसे रखता है, To pay for all the sins that you and I will have committed. और उसने मेरे और आपके गुनाहों की कीमत अदा की। But when He died, He did not remain in the grave. लेकिन बड़ी बात यह है कि वो कब्र के अंदर मुर्दा ही ना रहा, And He rose again from the dead in the third day. लेकिन वो तीसरे दिन बड़ी कुदरत से मुर्दों में से जी उठा And now He's seated on the right hand side of God the Father. और उसके बाद वो अपने बाप के दाहिने हाथ जा बैठा And He's interceding for you and I. और ये हमारे लिए बड़ी फतहमंदी की बात है, Beloved, Jesus is the only way. क्योंकि यीशु ही वो रास्ता है He is the only one who died for you. और वही वो हस्ती है जो हमारे लिए हुआ है। No man died for your sins. और अब उसने हमारी तमाम बीमारियों को दूर किया No one took your punishment for you. और किसी और ने हमारी सजा अपने ऊपर नहीं दी। It was only Jesus who did all that for you. ये सिर्फ यीशु ही है जिसने ये सब कुछ अपने ऊपर दिया। That is why He is the only way to go to the इसलिए Father. वो कहता है कि मैं ही वो रास्ता हूँ जो खुदा के पास ले जाता है। You see, God will not put anyone to hell because of their sin. खुदा जो है वो किसी को भी जहन्नम में डालना नहीं चाहता था। God will put men into hell because they refuse to accept Jesus as their Lord. असल है कि सब लोग जो हैं वो आसमान पर चले जाएं, उसके लिए उस रास्ते को यानी यीशु को कबूल करना जरूरी है। God will not put men in hell because of their sins, because Jesus paid for all sins. और खुदा जो है हमें जहन्नम की आग में भेजना नहीं चाहता, क्योंकि यीशु ने हमारे गुनाहों को अपने ऊपर लिया है और उसने हमारे लिए रास्ता तैयार किया है। The reason why you and I who are believing in Jesus, और आज अगर हम सब उस यीशु पर ईमान रखें, when we die today, we will go to heaven and commune with the Father. तो हम जो है सब बाप के साथ आसमान पर जा सकते हैं। It's not because we don't sin. ये इसलिए नहीं कि हमारे गुनाहों की बदौलत नहीं, या इसलिए नहीं कि हमने गुनाह नहीं किए, That is because Jesus has paid for our sins. बल्कि ये इसलिए है क्योंकि यीशु ने हमारे गुनाहों को ले लिया है और उसने हमारे गुनाहों को उठाया और हमें बाप के साथ हमारा मेल मिलाप कराया। So Jesus has paid for every sin that you and I have committed and will not commit. तो यीशु ने हर एक कमजोरी और बीमारी की कीमत अदा की है। And so God don't hold our sins against us. तो इसलिए जरूरी है कि हम इस बात को जानें God don't hold our sins against us. और उसने हमारे गुनाहों को कायम ना किया। Hallelujah. हालेलुया। And today Jesus Christ is coming at the door of the heart. और आज यीशु हमारी जिंदगियों में आना चाहता है, हमें बहाल करना चाहता है। God wants to give you salvation. और खुदा जो है वो हमें निजात देना चाहता है। God wants you to come to Him. और खुदा आपको मौका देना चाहता है कि आप उसके पास आएं। You don't need to travel to a place to get salvation. और उसने आपकी निजात के लिए कीमत अदा की है। You don't need to travel to any man to get salvation. और आपकी निजात के लिए यीशु ने बड़ा बोझ अपने ऊपर लिया है।
Salvation has come to you today. आज निजात जो है वो आपके लिए है। Jesus has come to you today. यीशु आज आपकी जिंदगी में आना चाहता है। Jesus is knocking at the door of your heart. He's knocking. और वो चाहता है कि वो आपकी जिंदगी का खुदावंद बन जाए। He said, open and I will come in and your life will never be the उसने same. कहा कि जो अपने दिल का दरवाजा खोलेगा मैं अंदर आऊंगा और उससे निजात बख्शूंगा। If you don't know Jesus and you have not accepted Jesus as the Lord and personal Savior, और अगर आज हम यीशु को नहीं जानते तो मौका है कि हम उसको अपने शख्सी निजात दहिता के तौर पर कबूल करें। you are making a big mistake because you can never go to the Father without और ये एक बड़ा फैसला है जो आपकी जिंदगी तब्दील कर सकता है। All you have to do is receive Jesus as the Lord and personal आपको Savior. सिर्फ ईमान से यीशु को अपना शख्सी निजात दहिता और खुदावंद कबूल करना है। All you have to do is open your heart for Jesus to come आज आपको सिर्फ अपने दिल का दरवाजा उसके लिए खोलना है। And when Jesus comes into your life, और जब यीशु आपकी जिंदगी में आएगा your life will never be the same. और आपकी जिंदगी जो है वो पहले जैसी नहीं रहेगी, वो तब्दील हो जाएगी। As I bring my message to an end, मैं अपना मैसेज का इख्तिताम करना चाहता हूँ। if you are here and you have never made Jesus the Lord of your life, अगर आज आप यहाँ पर मौजूद हैं और आपने कभी यीशु को कबूल नहीं किया, today the Lord Jesus has come to you. आज यीशु आपके लिए आया है। He said, son, daughter. सॉरी, He said, my son, my daughter. वो कहता है कि मेरे बेटे या मेरी बेटी, I died for you. मैंने तेरे लिए जान दी है। I took all your sins on my body. मैंने तेरे सारे गुनाहों को ले लिया है। I have paid for all your sins. मैंने तेरे तमाम गुनाहों की कीमत अदा की है। And I want to give you salvation. आज मैं तुझे निजात देना चाहता हूँ। Jesus is here to give you salvation. आज यीशु यहाँ पर है ताकि आपको निजात बख्शे। There is no other way. There is no other way. आइए उससे आज हम मुंह ना मोड़े बल्कि उसको कबूल करें। Jesus Christ is the only way to salvation. याद रखिए कि यीशु ही सिर्फ निजात का रास्ता है। Jesus is the only way to salvation. यीशु ही सिर्फ निजात का रास्ता है। There is no other way to और salvation. कोई रास्ता नहीं है जो निजात दे सके। So today, as you hear the sound, as you are hearing the sound of my voice, और आज वो आपको अपने बेटे और बेटियां बनाना चाहता है। I want to give you the opportunity to make Jesus मैं the आज Lord आपको of ये your life. मौका देना चाहता हूँ कि आज अपनी जिंदगी में आप यीशु को कबूल करें, यीशु को अपना शख्सी निजात दहिंदा और खुदावंद होने के लिए कबूल करें। Jesus is knocking at your door right now. आइए यीशु आपसे बात करना चाहता है। मैं चाहता हूँ आइए अपने कदमों पर खड़े, आइए हम बड़ी संजीदगी के साथ ये फैसला करें और आज यीशु को जो हमारे लिए मुआ है वो हमारी जिंदगी में If आए। you are here and you want to receive Jesus as your Lord and personal Savior, वो चाहता है कि आज आप अपने दिल का दरवाजा उसके just लिए lift खोलें। up your hand wherever you are. You want to receive Jesus as your Lord and personal आइए Savior. अपने हाथों को बुलंद करें, दोनों हाथों को बुलंद करें। शाबाश। If you are in this meeting and you don't have Jesus, you have never made Jesus the Lord of your life, आइए सब लोग अपने हाथों को बुलंद करें ताकि आज I want you to lift up your hand and let me see. आइए अपने हाथ You have come सब to लोग अपने हाथ Jesus, you बुलंद have never confessed Jesus as your Lord. आइए सब लोग अपने हाथ बुलंद करें। सब लोग, सबके पास हाथ है, ऊपर ऊपर बुलंद करें। Just move forward. Just walk to your Lord. I want you to move up on the seat in the worshipers and then give me some worship. Just play some music whilst I work up there.
सॉरी, कैन यू रिपीट प्लीज? I said, anyone who has lifted the hand and want to receive Jesus, I want them to move forward from the chair. Come to the front. Come to the front. I want to see them at the front. And I'll pray with them. जितने लोग यहाँ मौजूद हैं और वो यीशु को कबूल करना चाहते हैं, दुआ करवाना चाहते हैं, वो सब सामने आए। खुदा के खातम उनके लिए दुआ भी करेंगे और स्टेज के सामने आ जाए। यहाँ से एक चेयर जो है एक रॉन्ग उठा ले और सभी लोग जो है जो दुआ करवाना चाहते हैं, जिन्होंने तौबा की है, जो यीशु को कबूल करना चाहते हैं, आए सामने आ जाए। सभी लोग सामने आ जाए, आगे आ जाए, आगे आ जाए, आगे आगे अगली रो में आ जाए, सभी लोग सामने आ जाए। Hello. Yes, they are coming up. I asked them. I am waiting for you. You are the master. You are postponing. Today is your day. Come to Jesus. Yeah. He died for you. Yeah, there are so many people who come forward. You can pray for them. People have come forward. You can pray for them now. Hallelujah. Now I'm going to pray with you. आइए मैं आपके लिए दुआ करना चाहता हूँ। खामोशी इख्तियार करें, खामोशी इख्तियार करें, मैं आपके लिए दुआ करना चाहता हूँ। Yes, please pray. Lift your two hands up. आइए अपने हाथ, दोनों हाथ बुलंद करें, दोनों हाथ बुलंद करें। Let them lift your two hands up. आइए दोनों हाथ अपने Lift your two hands up. Thank you. यीशु, And I'll just say this after me. और मैं चाहता हूँ कि आप आज मेरे पीछे पीछे ये दुआ करें। Dear Lord Jesus. यीशु आपसे प्यार करता है। Say, dear Lord Jesus. यीशु आपका निजात नहीं था। Thank you for giving the heart for me. आइए हम यीशु के पास आए। Thank you for dying on the cross for me. खुदा यीशु, मैं तेरा शुक्र अदा करता हूँ। मेरे पीछे पीछे कहें कि तू मेरे लिए हुआ। I invite you into my life. मैं तुझे अपनी जिंदगी में दावत देता हूँ। Come into my heart. मेरे दिल में आ, Come into my heart. मेरे दिल में आ। I make you the Lord of my life. मैं तुझे अपनी जिंदगी का खुदावंद कबूल करता हूँ। Forgive all my sins. मेरे गुनाहों को माफ कर, Forgive all my sins. मेरे तमाम गुनाहों को माफ कर And write my name in the book of life. और किताबे हयात में मेरे नाम Jesus, यीशु, I make you my Lord. मैं तुझे अपना खुदावंद तस्लीम करता हूँ। And the rest of my life, और मैं तमाम जिंदगी I will live to serve you. मैं सारी जिंदगी तेरे साथ गुजारूंगा। Thank you, Father. Thank you, Father. खुदा बाप तेरा शुक्र। In Jesus' name. यीशु के नाम से Amen. आमीन। हम सब Now we'll be right now आइए praying for you. आइए कुरान के जलाल के लिए जोरदार तालियां बजाएं। I want to tell all of you that have come forward. I want to tell everyone that has come forward. Sorry? Can you hear me? Yes. I want to tell all those that are standing in front मैं आप सबको ये कहना चाहता हूँ, बताना चाहता that हूँ today your name is in the book of life. आज आपके नाम किताबे हयात में लिखे गए हैं। Now they belong to the family. अब आप खुदा के खानदान आइए अपने दोनों हाथ हम हवा में लहराएंगे, दोनों हाथ। हम सब आज खुदा के खानदान का हिस्सा बने Life will never be the same. और आज के बाद आपकी जिंदगी तब्दील हो जाए। Amen. आमीन। Now I want to pray for them. I want to pray for them. मैं आपके लिए दुआ करना चाहता I हूँ। want to pray for them. आइए मैं आपके लिए दुआ करना चाहता हूँ। I want to pray for them. Those in the front, I want to pray for them. I want to pray for them. Father, in the name of Jesus. खुदा बाप यीशु के नाम से
thank you for the life of these wonderful people who have joined the family. खुदावन जितने आज यहाँ पर खड़े हैं मैं उनकी तरह शुक्र अदा करता हूँ। I seal every one of them with the blood of Jesus. मैं तमाम लोगों को यीशु के खून को छुपाता हूँ। Holy Spirit, protect them and guide them, fill them now. और खुदावन पाक उनको इनकी रहनुमाई कर और उन्हें अपने खुशा से मामूल कर। Holy Ghost, fill them now and touch them now. और खुदावन आज तुम्हें Spirit of the Lord, touch them and fill them now. और खुदावन को इनका भर और सारी बीमारी कमजोरी को दूर कर। Having free. And from today, Satan, I declare, you have no power over them. और मैं आज इस बात का ऐलान करता हूँ कि आज के बाद शैतान के यीशु के नाम से दूर होते चले जाएं और सारी बीमारी कमजोरी से जाती रहे यीशु के नाम से। They are a property. और खुदावन आज के बाद ये तेरी मलकियत है। They are the property of Jesus. और यीशु आज के बाद ये तेरे लोग हैं। Amen. आमीन। Amen. Now I want to pray. You can go and sit down. If you are sick, your body will remain. और But if you are not sick, you can go and sit down. Anybody who came here to their family with any sickness, any disease, anything more the Lord touch you. Just बाकी pray. सब लोग बैठ सकते हैं लेकिन जो बीमार कमजोर हैं वो And if you are at the back there, I just want you to put your hand. आइए जहाँ पर आपको कमजोरी है Anywhere you are sick in your body, put your hand over there. अपना हाथ वहाँ पर रखें और मैं आपके लिए दुआ करूँगा। You can go and take your seat. You know, let everybody go and take there. Wherever you are sick, put your hand there. Wherever you are sick, if you are looking for the seat of the Lord, put your hand in the belly. Everywhere you are sick, put your hand there. I'll pray for you now. Those at the back, if you are sick, put your hand there. आइए जहाँ पर बीमारी है जहाँ पर कमजोरी है वहाँ पर अपना हाथ रखें On your heart. और अगर कोई दिल की मुराद है तो आइए अपने दिल पर हाथ I'm going to pray for you now. मैं आपके लिए सबके लिए दुआ करूँगा The power of God is going to come on you. और खुदा की You will not walk from here with your sickness. और खुदा की बरकत जो है कि वो जो है Every sickness that you have, put your hand, touch up please right आइए अपना now. हाथ बीमारी वाली जगह पर रखें। If you are looking for a job or anything, just put your hand on your heart. अगर आपके अंदर कोई दिल की मुराद है कोई अच्छी बात है खुशीदा बीमारी है तो अपने दिल पर हाथ रखें। If it's about your marriage or it's about your business, put your hand on your heart and I'm praying for you. हालेलुया। आप मसीह का बदन हैं उसकी कुव्वत आपकी जिंदगी में Amen. I am praying, just believe. I'm praying now for you. मैं आपके लिए दुआ करूँगा In the name of Jesus Christ, यीशु के नाम से I release the healing hand of God upon you right now. मैं आपके लिए यीशु का शाफी हाथ मांगता हूँ। In the name of Jesus, be healed from every sickness now. यीशु के नाम से आपकी सारी बीमारी जाती रहे। In the name of Jesus, be healed from every infirmity now. यीशु के नाम से आपकी सारी कमजोरी जाती रहे। In the name of Jesus, be released from every bondage of the enemy now. और यीशु के नाम से मैं आपके लिए शिफा को कुव्वत को जारी करता हूँ। In the name of Jesus, be healed now. यीशु के नाम से शिफा पाए। I cast every disease out of your body now. मैं आपके बदन से सारी बीमारी को दूर करता हूँ। Every heart disease be broken in the name of Jesus. हर तरह की दिल की बीमारी और सारी बीमारियां यीशु के नाम से जाती रहे। Every disease in the blood be broken in खून में जो भी बीमारी कमजोरी है इन्फेक्शन है यीशु के नाम से जाता रहे। Every sickness in the intestine be healed in the name of हर Jesus. बीमारी यीशु के नाम से दूर होती चली जाए।
Every sickness is in the heart. Be healed in the name of Jesus. दिल की बीमारी यीशु के नाम से जाती रहे Sickness is in the liver. Be healed in the name of Jesus. और हर तरह के इन्फेक्शन यीशु के नाम से जाते रहे Sickness is in the lung. Be healed in the name of Jesus. बर्रे के खून के वसीला से बीमारी कमजोरी जाती रहे Blindness receive your sight in the name of Jesus. आंखों की बीमारी और अंधापन यीशु के नाम से दूर होता चला जाए Ears and down be open in the name of Jesus. और बंद कान यीशु के नाम से खुलते चले जाए Every sickness in the name of Jesus. हर बीमारी यीशु के नाम से जाती रहे Every disease is loosed and goes हर out. बीमारी यीशु के नाम से दूर होती जाए Every power of darkness be broken now in the name of अब Jesus. ऋष की हर तरह की कुवत यीशु के नाम से जाती रहे Father, I thank you खुदा बाप मैं तेरा शुक्र अदा करता हूँ that you always hear me when I देव pray. खुदावन तू हमेशा हमारी दुआओं को सुनता है और जवाब देता है Thank you for healing in the heart. खुदावन तेरा शुक्र हो कि तूने अपने लोगों को शिफा बख्शी Thank you for healing in the lungs. खुदावन तूने हमको शिफा दी है मैं तेरा शुक्र अदा करता हूँ Thank you for healing in the blood. खून की बीमारियों को दूर करने के लिए तेरा शुक्र है Thank you for making new organs. खुदावन उनके जख्मों को दूर शिफा देने के लिए तेरा शुक्र है Thank you for opening the wounds of the barren. और खुदावन तूने बांझपन को दूर किया है मैं तेरा शुक्र अदा करता हूँ Thank you for blessing marriage. खुदावन तूने खानदानों को रिश्तेदारों को बरकत दी है मैं तेरा शुक्र अदा करता हूँ Thank you for blessing businesses. खुदावन तेरा शुक्र है कि तूने लोगों को छुड़ाया Thank you for answering all the needs of your people today. और खुदावन आज तूने सारी बीमारियों को दूर किया दुआओं का जवाब दिया तेरा शुक्र है We give you praise. खुदावन तुझे ही जवाब दिया In Jesus' यीशु name. के नाम से आमीन Amen. आमीन